Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Farhan Khan Abbasi and you're watching Zakir Coaching Center's online video sessions. Today we'll discuss about the first lecture of political science, and we have decided to begin our lecture series from Western political thoughts. Before going into the details of Western philosophy and thoughts which were being promoted by the Western philosophers in the ancient Greece, it is important for us to understand the concepts of daily life affairs, the civilizational trends of the ancient Greece, vis-a-vis the way the people lived there, the kind of governmental structures, the religion they profess, and all these kind of things. It is very much important. And the second most important thing, which is also important for a student of political science, that he or she must understand historical facts, because the development of the study of political philosophy, political science, statecraft, international relations, public administration, town management, governance, all these came from those primitive eras or those primitive civilizations which were so much master in all these kind of things. And when you go through the chronological order of all these things and happenings, it would be quite easier for us to grasp their political philosophies, their concepts of running the affairs of the state, their concepts of understanding the world, their concepts of war, their concepts of peace, their concepts of public administration, their concepts of the role of the people in governance, their concepts of a kind of societal impression which they have produced in their time. Students, we have lots of things to make this video session more easy, understandable, comprehensive, and interesting. That we have included a kind of some video documentaries within this lecture and along with all other series of lectures. The second most important thing is that we have tried our level best to project this kind of knowledge to the students with images, that it is a good source of understanding for the students, which you can say that have a great impact on their memory to grasp the concepts along with the videos and different kind of visuals and presentations and the slides. So we may start. First we'll discuss and understand about the lecture outline. Students, today we'll discuss about ancient Greeks, the Hellas. Our subject is political philosophy or the Western political philosophy. I'm your mentor. I did PhD International Relations. I'm in political science, twice qualified highest comparative examination. The second time I have qualified in 2012. There's a WhatsApp number for those students who want to join our video sessions and all these kind of things. Now, moving towards our lecture, first we have to understand the lecture outline. At first, student will understand the geographical location of the Greece, or that all city-states which were collectively the main focus of those eras people, and as well as their descendants and up to us, that brought us the great political philosophies. Second one is the other empires present at that time. For example, if you see in this graph, that there is shown about Sparta, Athens, Macedonia, but along with all these smaller size of islands, there is some greater portion of land which were being the part of that world. And at that moment or period of time in 500 BC, when the Greeks were developing their philosophy, Greeks were developing their culture, Greeks were developing their art, craft, and other kind of things. Alongside this, there exists number of greater empires, number of greater states which were more strengthened, which were more consolidated,
which were more comprehensive and more stable than the world of Greece, but they all lacked the political philosophy by means of which the Greeks are considered the pioneers. So in our lecture we'll discuss about other empires present at that time, the culture, society, religion, the wars fought by Greeks among the Greek city-states and against the external invaders, the major city-states of the Greeks. At that particular time, city-state was known as a polis. अगर हम in depth देखें तो polis का मतलब एक शहर है, which is the combination of multiple villages. और ग्रीक में 3 important city-states का जिक्र आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी है उनका सोसाइटी के ऊपर. नंबर 1 एथेंस, एक ज्योग्राफिकल एरिया है एटिका का, वहां पर ये एथेंस वाक़या था. ये आप देख सकते हैं, इस पूरे के पूरे एरिया को एटिका कहते थे. सेकंड वन इज स्पार्टा, लिकोनिया ये एरिया का नाम है. और उसके बाद है मैसेडोनियन एम्पायर और इस एरिया का नाम है पैला. याद रखिएगा इन 3 मेजर सिटी स्टेट्स की अपनी अपनी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल और पॉलिटिकल सिस्टम्स थे. एथेंस में यानी एटिका में, इसका मेन शहर एथेंस था, डेमोक्रेसी थी, बट दैट काइंड ऑफ अ डेमोक्रेसी वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम टुडेज कंटेम्परेरी डेमोक्रेसी ऑफ 21st सेंचुरी. सेकंड वन इज स्पार्टा, यहाँ पर ओलिगार्की थी, रूल ऑफ फ्यू था जिसको ओलिगस आर्कॉन भी कहा जाता है. मैसेडोनिया में मोनार्की थी जिसको मोनो आर्कॉन भी कहा जाता है. तो स्टार्ट करते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ ग्रीस की. ये जो मैप आपके सामने शो किया जा रहा है ये बेसिकली उस दौर का है जब यहाँ पर डिफरेंट प्रिमिटिव जो सिविलाइजेशन थी जो ग्रीक से मोर और लेस 5 to 1500 years बिफोर एग्जिस्ट किया करती थी. उन पर भी थोड़ी सी नजर डालेंगे. लेकिन अगर इस मैप के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये जो सर्कल्ड एरिया है ये तमाम ग्रीक की सिटी स्टेट्स हैं जो आइलैंड्स पर मुश्तमिल थी, जिसमें आपको एटिका नजर आता है, स्पार्टा नजर आता है, मैसेडोनियन एम्पायर आपको नजर आती है, थेस्ले नजर आती है, एटोलिया नजर आता है, एपायरस नजर आता है, लॉस नजर आता है, एंड्रोस नजर आता है, रोड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नजर आता है. और ये देखिए हेलस, ग्रीक के रहने वालों को हेलस कहते थे एक्सेप्ट द पीपल ऑफ रोड्स. एक और इंपॉर्टेंट चीज, ग्रीक वर्ल्ड में 500 BC से ऑनवर्ड तमाम के तमाम आइडेंटिटीज जिस भी आइलैंड की थी वो अपनी आइडेंटिटी को ज्यादा प्रेफर करते थे रादर देन कलेक्टिव आइडेंटिटी एज अ ग्रीक. इस तरह के रोड्स के लोग हो गए, स्पार्टा के लोग हो गए, एथेंस के लोग हो गए, मैसेडोनिया के लोग हो गए. ये जो सिविलाइजेशनल या जो कल्चर थे इनके अपने अपने, कोलेक्टिवली तो लैंग्वेज सेम थी, कोलेक्टिवली वे ऑफ लिविंग भी कंपैरेटिवली सेम थे, बट उनके पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम और उसके साथ साथ उनकी अपनी एक आइडेंटिटी थी जो कि एक दूसरे में डिफरेंशिएट क्रिएट करती थी. उसके अलावा अगर हम देखें तो ये भी एक मैप है, ये जरा लार्जर व्यू देता है हमें. और यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये हैं ग्रीक सिटी स्टेट्स, वो मेजर सिटी स्टेट्स जो बाद में फिर डोमिनेट करती हैं. जिसमें अगर आप एथेंस को देखें तो एथेंस ने फिलॉसफी में डोमिनेट किया. मैसेडोनिया से फिलिप II के बेटे अलेक्जेंडर द ग्रेट 338 BC में इमर्ज करते हैं और फिर आते हैं और एथेंस, स्पार्टा और ये बाकी तमाम एरिया जो है इसको कंकर करते हैं और फिर मूव करते हैं टुवर्ड्स पर्शियन एम्पायर की तरफ. इसके अलावा एक और हमारे पास एक ऐसा मैप है जो 500 BC के ग्रीक्स को डिटेल में आपको अंडरस्टैंड करने में मदद देता है. अगर आप देखिए तो यहाँ पर एथेंस, उसके साथ स्पार्टा, मैसेडोनिया है. मैं एथेंस, स्पार्टा, मैसेडोनिया का ज्यादा जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी जितनी भी आगे डिस्कशन चल रही है वो इन्हीं पर चलेगी और जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हम इधर से डेवलप करेंगे. और ये देखिए लेस्बोस भी यहाँ पर आपके सामने, रोड्स भी है, कॉस भी है, साइक्लेड्स भी है. इसके बिल्कुल ऑपोजिट एजियन सी आपको मिलता है. एशिया माइनर ये वो एरिया है जहां पर
तमाम की तमाम जो हुकूमतें थी वो पर्शियन एम्पायर के अंडर समझी जाती थी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, अदर एम्पायर्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। अगर आप इस मैप में देखें तो ये एक डिटेल एनालिसिस देता है एंशिएंट ग्रीक जो सिटी स्टेट्स थी उनके बारे में। और ये देखिए तमाम की तमाम सिटी स्टेट्स यहाँ पर हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ग्रेटर पर्शियन एम्पायर एग्जिस्ट करती है जो कि लीबिया, इजिप्ट और ऑनवर्ड बाकी एरियाज को भी कवर करती है। ये बहुत बड़ी एम्पायर जो उस वक्त एग्जिस्ट कर रही थी और काफी अरसे तक ये एम्पायर एग्जिस्ट करती रही, जिसको बाद में मैसिडोनियन एम्परर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 300 एंड अराउंड 31 बीसी से कंकर करना शुरू किया और 323 बीसी तक ऑलमोस्ट ये सारी एम्पायर और कुछ और अरेबियन वर्ल्ड का एरिया, लीबिया का एरिया, इजिप्ट का एरिया और फिर आपके मोस्ट वेस्ट में एक रोमन एम्पायर थी उसको भी इन्होंने कंकर कर लिया। एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स 500 बीसी में अगर आप एशिया में आकर देखते हैं तो नॉर्दर्न एरिया में रशिया से नीचे एक एम्पायर एग्जिस्ट करती थी, इसको हैन एम्पायर कहा जाता था, जिसको आजकल का कॉन्टेम्परेरी चाइना भी कहा जा सकता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स उस वक्त में कुछ और एम्पायर्स भी थी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एक रोमन रिपब्लिक है। रोमन रिपब्लिक इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब मैसिडोनियन एम्परर अलेक्जेंडर द ग्रेट 338 बीसी में ये बाकी एरियाज यानी एक इंपॉर्टेंट सिटी स्टेट एथेंस, स्पार्टा इनको कंकर कर लेते हैं और इन तमाम एरियाज में मैसिडोनियन एम्पायर का एक आप समझ लें क्लेम करते हैं और मैसिडोनियन कल्चर को प्रमोट करते हैं, तो इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ईस्ट की तरफ, एशिया माइनर की तरफ पर्शियन जो एम्पायर थी उसको कंकर करना। लेकिन उस वक्त एक छोटी सी रिपब्लिक इटली में वाक़या थी जिसको रोमन रिपब्लिक कहा जाता है, जो कि बाद में जब अलेक्जेंडर द ग्रेट इस दुनिया से चले जाते हैं और 323 बीसी के बाद इनके जर्नल्स आपस में लड़ पड़ते हैं, तो फिर कोई 180 साल का एक अरसा लगता है जब ये मैसिडोनियन एम्पायर भी पूरी दुनिया से स्क्वीज होना शुरू हो जाती है, बगावतें होना शुरू हो जाती हैं। तो तब 41 बीसी में यहाँ पर एक एम्परर, एक वॉरियर इमर्ज करता है जो कि ये मिशन लेकर चलता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो कंकर्ड वर्ल्ड है उससे ज्यादा कंकर दुनिया को वो करेगा और उसका नाम है जूलियस सीजर, जो कि अपने दौर में काम तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके आने वाले जितने भी बाद में एम्परर्स हैं वो दो काम करते हैं। एक तो ग्रीक आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग को कॉपी करते हैं, दूसरा ग्रीक्स में स्पार्टन और मैसिडोनियन जो वॉर की एक अलग से थ्योरी थी या उनकी जो वॉर की फिलॉसफी थी उसको अंडरस्टैंड करके अपने आप को वेल इक्विप करके रेस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड को कंकर करते हैं और मैसिडोनियन एम्पायर को खत्म कर देते हैं। एट दैट टाइम कुछ और एम्पायर्स भी एग्जिस्ट करती थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि ये प्रिमिटिव एम्पायर्स हैं, जिसमें से आपको यहाँ पर एक नजर आ रहा है यूआर सिटी मेसोपोटामिया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेबीलोन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इजिप्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर आप गौर से देखें तो ये वो सिविलाइजेशंस है जिसको आज के जब रिसर्चर अंडरस्टैंड करते हैं तो ये एग्जिस्ट करती थी 3500 बीसी में यूआर सिटी था। अगर आप इस मैप को गौर से देखें तो यूफ्रेट एंड टिग्रिस यानी दरियाए दजला और दरियाए फरात के किनारे पर यूआर सिटी आबाद था, जिसके रहने वालों को सुमेरियंस यानी समर कहा जाता था। और दीज वर द पीपल हु फर्स्ट इन्वेंटेड व्हील, जिन्होंने दुनिया में पहली रिटन लैंग्वेज को इन्वेंट किया, जो बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड थे, जिनके जो कल्चर थे वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कल्चर थे, जिनके रिलीजियस प्लेसेस, जिनके सिटीज के आर्किटेक्चर, जिनका रहन सहन आज की दुनिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये एम्पायर्स ग्रीक वर्ड से भी तकरीबन 3000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी और 500 बीसी में जब ग्रीक से इमर्ज करते हैं तो तब भी ये एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कल्चर, सोसाइटी एंड रिलीजन ऑफ ग्रीक। जी स्टूडेंट्स,
जब हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि ग्रीक की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या थी, ग्रीक से पहले और ग्रीक के दौर में मौजूद रियासतें कौन कौन सी वहां पर थी, जो कि अपने अपने तमाम फुल जिसको कहते हैं अथॉरिटी के साथ अपने जो फंक्शंस थे उनको एग्जीक्यूट कर रही थी। अब हम वापस आते हैं इस चीज को अंडरस्टैंड करने में कि ग्रीक्स का कल्चर क्या था, ग्रीक्स की सोसाइटी कैसी थी, ग्रीक्स में मजहब कौन सा प्रोफेस किया जाता था, जो ग्रीक्स थे उनके खुदा क्या थे, क्या वो मोनोइज्म को मानते थे, पैंथीइज्म को मानते थे। ग्रीक्स सोसाइटी में मेल डोमिनेशन थी, फीमेल डोमिनेशन थी। ग्रीक सोसाइटी में एजुकेशन का रोल क्या था, ग्रीक सोसाइटी में रिच और पुअर का डिफरेंशिएशन क्या था, ग्रीक सोसाइटी में क्लासेस की डिवीजन थी या नहीं थी, और अगर थी तो क्या तमाम सिटी स्टेट्स में एक जैसी क्लासेस की डिवीजन थी या फिर अलग अलग क्लासेस की डिवीजन थी। और उसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि कैसे ग्रीक्स की फिलॉसफी इमर्ज करती है 430 बीसी के बाद और पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को डोमिनेट कर लेती है, यहाँ तक कि आफ्टर ग्रीक्स जिसको हम इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि जब डिक्लाइन आता है ग्रीक्स का और डोमिनेंस आती है जो कि रोमन रिपब्लिक है, तब भी 1500 साल तक ग्रीक्स की फिलॉसफी, ग्रीक्स का आर्किटेक्ट, ग्रीक्स की कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ, पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंटिन्यू रखा गया और पूरी दुनिया पर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी हुआ। तो देखते हैं ग्रीक की सोसाइटी कैसी थी। स्टूडेंट्स, ग्रीक की जो सोसाइटी थी इट वाज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। वुमेन वर कंसिडर्ड लोअर टू मैन। नॉर्मली देखा यह जाता था कि पूरे के पूरे ग्रीक में जो डोमिनेंस थी वो मेल के पास ही थी। एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ स्पार्टा में देखी जाती थी, जहां पर वुमेन का एक इंपॉर्टेंट रोल था। वुमेन एजुकेशन भी हासिल करती थी और कंपैरेटिवली मर्दों के शाना बशाना चलती थी, साइड बाय साइड होती थी, रादर वो पॉलिटिकल अफेयर हो या फिर वो डेली अफेयर ऑफ लाइफ हो या कहीं रिलीजन हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जहेज का एक ऐसा कॉन्सेप्ट ग्रीक में पाया जाता था, डॉवरी का कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से भी ग्रीक्स की जो सोसाइटी थी वो फीमेल को एक इवल सोर्स समझा करती थी, बिकॉज इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अ ग्रीक रेजिडेंट कि वो अपनी बेटी के लिए कोई एक लाइक माइंडेड और एक अच्छा हस्बैंड तलाश करे। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसको पहले उस बच्ची को पालना पोसना पड़ता था और उसके बाद उसके लिए एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ जहेज भी इकट्ठा करना पड़ता था। हमने देखा कि जो ग्रीक्स में हाई क्लास फीमेल हैं उनको तो प्राइस्टेस भी कंसिडर किया जाता था, यानी खुदाओं से उनके डायरेक्ट रिलेशन समझे जाते थे, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देती थी और उनके जो नेटिव रिलीजन थे वो भी बाउंड करते थे कि जो फीमेल है इसका डायरेक्ट रिलेशन खुदा से हो। और उसमें एक उनकी प्रॉपर एक ट्रेडिशन भी चला करता था कि वो एक वर्जिन लेडी को एट द एज ऑफ 7 इयर्स सिलेक्ट करते थे। 16 से 18 साल की उम्र तक उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाती थी और अगर ऐसा टाइम आए कि जब उनको लगे कि उनके खुदा उनसे नाराज हो रहे हैं तो उनको एग्जीक्यूट भी किया जाता था, वो कम्युनिटी को सेव करने के लिए। आप यूजुअली ग्रीक्स जो थे वो उन औरतों से शादी करते थे जो उनकी उम्र से तकरीबन 3 साल छोटी हों, यानी 3 टाइम्स लेसर इन एज हों। ज्यादातर ग्रीक ओवरऑल ग्रीक की जो 100 से ज्यादा सिटी स्टेट्स थी कलेक्टिवली सब में ही एक्सेप्ट द हाई क्लास वुमेन ऑफ ग्रीक जिनको मजहब में बड़ा इंपॉर्टेंट दर्जा दिया जाता था, या एजुकेटेड वुमेन ऑफ स्पार्टा, इनके अलावा पूरे के पूरे ग्रीक सिटी स्टेट्स के सिस्टम में जो खवातीन थी उनको घर के ही काम, हाउस होल्ड एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ा करती थी और इसके अलावा उनकी कोई खास और ड्यूटीज नहीं होती। एक और इम्पॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स कि ग्रीक्स के अंदर प्रोस्टिट्यूशन जो था ये बहुत ज्यादा कॉमन था। अगर आप देखते हैं एथेंस में, अगर आप देखते हैं स्पार्टा में, अगर आप देखते हैं मैसेडोनिया में, रोड्स में और बहुत सी ऐसी जगहों पर, तो प्रोस्टिट्यूशन वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट
and considered very near to the society. लेकिन जो लेवल ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स था ये सोसाइटी ने डिटरमिन किया हुआ था, चाहे वो स्पार्टा हो, चाहे वो एथेंस हो, चाहे वो अदर सिटी स्टेट्स हो ग्रीक की, वहां पर डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो हायर लेवल की प्रोस्टिट्यूट्स का एक अलग रोल हुआ करता था। वो ग्रीक्स के जो बड़े बड़े क्लब्स हुआ करते थे जहां पर रिच ग्रीक जाया करते थे, उनकी पार्टीज को अटेंड किया करते थे। और जो लोअर लेवल या मीडियोकर लेवल की ग्रीक्स प्रोस्टिट्यूट्स होती थी, उनका लेवल ऑफ रिस्पेक्ट या उनका लेवल ऑफ अर्निंग जो है वो कंपैरेटिवली हायर स्टैंडर्ड ग्रीक प्रोस्टिट्यूट से बहुत कम माना जाता है। नॉर्मली जो कैटेगरीज पाई जाती है ग्रीक्स के अंदर प्रोस्टिट्यूट्स की, तो तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, पोर्ना है, हेटीरा है और सेल्फियन है। पोर्ना के बारे में मशहूर है कि ये वो कैटेगरी हुआ करती थी ग्रीक्स में जो ज्यादातर लोअर क्लास जो ग्रीक्स हुआ करते थे, ये उनकी कैटेगरीज थी। नॉर्मली कहा जाता है कि ग्रीस के अंदर जो स्लेव इंडिविजुअल फीमेल्स हुआ करती थी उनको पोर्ना की कैटेगरी में रखा जाता था और इनको बहुत कम पे भी किया जाता था। सेकंड कैटेगरी है हेटीरा। हेटीरा जो है ये ग्रीक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्डाइज्ड स्टेटस हासिल करने वाली खवातीन हुआ करती थी, जिनको नॉर्मली वेल्थी मेन जो है वो जो ग्रीक सिंपोजियम्स थे उसमें इनको बुलाया करते थे और अक्सर को एज ए कॉन्क्यूबाइन यानी मिनिस्टर्स भी अपने साथ रखा करते थे। एक और बात याद रखी जाए कि ग्रीक के अंदर एक और कल्चर था कि वो खवातीन जिनको नॉर्दर्न अफ्रीका से एज ए कैप्टिव एज ए स्लेव लाया जाता था, इनको एथेंस में जो रिच ग्रीक्स थे वो यूज किया करते थे फॉर चाइल्ड बर्थ, बिकॉज हाई क्लास फीमेल ग्रीक्स में बच्चे की पैदाइश खुद नहीं किया करती थी, तो फॉर द नेक्स्ट जनरेशन या अपने बच्चे की पैदाइश या अपनी नस्ल की आगे बढ़ाने के लिए इस किस्म की खवातीन को लाया जाता था नॉर्दर्न अफ्रीका से कैप्चर करके, और इनकी जो कैटेगरी थी इनको हम कहते हैं सेल्फीन। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर होती है कि जो ग्रीक्स थे वहां पर जो फीमेल थी, चाहे उनका स्टेटस सोसाइटी में हो, चाहे उनका स्टेटस हायर क्लास में हो, चाहे उनका स्टेटस आम लोगों में हो, उनको मेल से लेसर ही कंसीडर किया जाता था, एक्सेप्ट दो कैटेगरीज ऑफ फीमेल, इसमें हाई क्लास फीमेल आती थी या प्राइवेट की आती थी। उसके अलावा फीमेल को लोअर कैडर में ही रखा जाता था। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ग्रीक पूरे का पूरा सब्जेक्ट था सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का। जैसा कि हमने लेक्चर के आगाज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, जो ग्रीक्स थे, जो भी सिटी स्टेट को आप देखेंगे इन डिटेल में, चाहे वो सिटी स्टेट स्पार्टा की हो, चाहे वो सिटी स्टेट मैसिडोनिया की हो, चाहे वो एथेंस की हो, चाहे वो सिटी स्टेट्स लेस्बोस की हो, रोड्स की हो, सोसाइटी जो थी डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड थी। हायर क्लास थी, लोअर क्लास थी, लोअर मिडिल क्लास थी, लोअर क्लास थी और आखिरी क्लास थी जिसको वो स्लेव क्लास कंसिडर किया करते थे। अगर आप ये एक गूगल का व्यू भी देखें तो ये आपके सामने ग्रीस की छोटी छोटी सिटी स्टेट्स आपको नजर आ रही हैं, जिनको यहाँ पर इन डिटेल देखा भी जा सकता है। और ये एजियन सी है, और ये आपका एथेंस है, स्पार्टा है, ये मैसिडोनिया है, और इन तमाम सिटी स्टेट्स का यहाँ पर जिक्र भी किया गया। अगर हम देखें तो जो एंशिएंट ग्रीस है, जिस तरह के पहले मैंने आपको बताया, इसमें सबसे पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इस पूरे के पूरे ग्रीस को एक्सपैंड किया और पर्शियन एम्पायर को कंट्रोल किया। लेकिन सिंस आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट रिवोल्ट्स होना शुरू हुए, और वो रिवोल्ट्स इतने ज्यादा बढ़ते चले गए कि जो एक बड़ी एम्पायर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने विन की थी पर्शियंस, उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता 180 साल बाद मैसिडोनियन एम्पायर बनी, और उसको एक मैसिडोनियन एम्पायर को फिर रोमन रिपब्लिक ने आहिस्ता आहिस्ता
146 बीसी से ऑनवर्ड कंकर करना शुरू किया और फिर एक बहुत बड़ी रोमन एम्पायर में। अब आते हैं ग्रीक्स के रिलीजन के ऊपर। तो ग्रीक्स पॉलीथीज्म के फॉलोवर थे। पॉली मींस मैनी, ह्यूज का मतलब गॉड्स। इम्पोर्टेंट दैट ग्रीक्स जो थे वो नेचर को भी खुदा मानते, पत्तों को, दरख्तों को, बिजली को। जीस उनका एक खुदा माना जाता था। हीरा ये भी उनका एक गॉड था। उसके अलावा पॉजिडॉन ये भी उनका एक गॉड था। हेड्स था। सर्बेरस उनका एक गॉड था। अपोलो उनका एक गॉड था। आर्थेमिस उनका गॉड था। हेफेथिस, डेमिट्रस और बहुत से ऐसे खुदाओं को ग्रीक्स अपना। फ्रेंड्स, ग्रीक के कल्चर को, ग्रीक की ज्योग्राफिकल लोकेशन को, ग्रीक की सोसाइटी को काफी हद तक हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। अब डायरेक्टली हम फोकस करेंगे ग्रीक सिटी स्टेट्स और उन ग्रीक सिटी स्टेट्स पर जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रही और जिनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा हमारे लिए पॉलिटिकल फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करने में। इसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एथेंस आते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्पार्टा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मैसिडोनियन एम्पायर, जिसने फिर बाद में पूरे के पूरे ग्रीस को पूरी दुनिया में प्रमोट किया। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शियन एम्पायर को इन्वेड किया, कंकर किया और ऑलमोस्ट 180 इयर्स तक ग्रीक ने दुनिया को रूल किया। आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये जो 180 साल का अरसा है, इसमें जो रोमन रिपब्लिक है ये आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज की। कुछ मैसिडोनिया के जो इंटरनल इश्यूज थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो जर्नैल्स थे वो आपस में लड़ पड़े थे, जिस वजह से फिर वो एक कंसोलिडेटेड और एक स्टेबल एम्पायर न रह सकी। और फिर हमने देखा कि रोमन एम्पायर फ्लरिश करती। लेकिन फिर भी जिस तरह के मैंने पहले कहा, रोमन एम्पायर के फ्लरिश होने के बावजूद भी ग्रीक्स के जो कॉन्टेम्परेरी एम्पायर्स थे, जिसमें इजिप्ट थे, जिसमें लीबियन एम्पायर स्टेट्स थी, जिसमें आप देखते हैं मेसोपोटामिया था, जिसमें हैन एम्पायर थी, चाइना जिसको कहा जाता है आज का मॉडर्न चाइना, इन तमाम के होने के बावजूद भी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी का इम्पैक्ट है, इवन दो आफ्टर द रोमन रिपब्लिक, और रोमन रिपब्लिक के भी 1500 साल बाद तक सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो था वो ग्रीक फिलोसोफर का था, पॉलिटिकल फिलॉसफी। और इसमें इन तीन ग्रीक पॉलिटिकल सिस्टम्स, ग्रीक के स्टेट सिस्टम्स और ग्रीक की सोसाइटीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तीन सिटी स्टेट्स ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एथेंस की थी, बट हम स्पार्टन, द मिलिट्री स्टेट, एंड मैसिडोनियन, द मोनार्किक स्टेट, इसको भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इनका भी बहुत ज्यादा रूल है। तो अब सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे वन बाय वन एथेंस को, स्पार्टा को और मैसिडोनिया को, with reference to their political system, with reference to their own indigenous culture, society, the way of living, the trade and all other things, जो कि हमने collectively अभी ग्रीस में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। स्टूडेंट्स, अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो मैसिडोनिया है यहाँ पर मोनार्की थी, और अगर हम देखें मोनार्की तो ये मोनो और आर्कॉन यानी वन मैन रूल्स है। इसके अकॉर्डिंगली जो डिसीजंस है वो वन मैन ही यानी किंग ही लेता था या टायरेंट लेता था। दूसरी तरफ ऑलिगार्की, ऑलिगोस एंड आर्कोन, रूल ऑफ फ्यू, जिसमें एक से ज्यादा लोग होते थे। ये सिस्टम हमें स्पार्टा में पाया जाता है, जहां पर 5 रूलर होते थे, काउंसिल ऑफ 5 रूलर जो डिसीजन मेकर होते थे, और वो पूरी के पूरे सिस्टम का डिसीजन होता। इसके बाद आता है एथेंस का मामला। एथेंस में डेमोक्रेसी थी, डेमोन्स मींस पीपल और कैराकिया मींस पावर। इसका मतलब फ्यू पावर्स, फ्यू पीपल के हाथ में, इसका मतलब ये हुआ कि जो वहां के रहने वाले लोग थे उनके हाथ में पावर थी। लेकिन जब हम इन डिटेल एथेंस को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि जो डेमोक्रेसी थी ये उन सिटीजन्स के बलबूते पे थी जो कि सिर्फ बहुत कम अमाउंट या कम तादाद, कम नंबर्स में एथेंस में पाए जाते थे, बिकॉज एथेंस वाज सब्जेक्ट टू क्लास सिस्टम।
और इसमें जो हाईएस्ट क्लास थी उसको सिटीजन्स का दर्जा दिया जाता था, और उस हाईएस्ट क्लास सिटीजन्स में भी सिर्फ मेल डोमिनेट करते थे और मेल ही वोटिंग का हक रखते थे। उसके बाद की जो क्लासेस थी जिसमें मैटिक्स थे, जिसमें स्लेव्स थे, यानी मैटिक्स जो नॉन सिटीजन्स थे, नॉन रेजिडेंट ऑफ एथेंस थे, उनको मैटिक का स्टेटस दिया गया था। और उसके बाद जो स्लेव्स थे ये वोटिंग नहीं कर सकते थे और सिटीजन फीमेल भी वोटिंग नहीं कर सकती थी। इससे हमें यह अंदाजा होता है कि जो उस वक्त की एथेंस की डेमोक्रेसी थी वो बहुत लिमिटेड लोगों की वोटिंग हुआ करती थी, बहुत लिमिटेड लोगों की काउंसिल हुआ करती थी, जिसको उस दौर में इक्लेसिया भी कहा जाता था, जहां पर तमाम जो मेल सिटीजन ऑफ एथेंस थे वो अर्ली मॉर्निंग जाया करते थे और वहां पर सेशंस को अटेंड किया करते थे। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि वहां पर कौन कौन सी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन थी। सबसे पहला यानी मैसेडोनिया में मोनार्की थी और बैसिलस सबसे हायर रेट ग्रुप या स्टार्टा माना जाता था, जिसको किंग और एम्परर कहा जाता था। ये यूजुअली हेरिडिटरी थे, फादर टू सन, ये जो किंगशिप थी ये ट्रांसफर होती थी। और दूसरी क्लास वहां जो पाई जाती थी इसको सैट्रैप्स कहा जाता था। गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस होते थे, ये भी किंग की क्लास से ही होते थे और मिनी किंग्स कहा जाता था। और तीसरी जो क्लास थी वहां पर सिटीजन्स थी और इनको सिटीजन सोल्जर्स भी कहा जाता था। और चौथी क्लास जो बहुत कम थी जिसको हम कहते थे स्लेव्स। उसके बाद आ जाते हैं स्पार्टा यानी लिकोनिया पर, जहां पर ओलिगार्की थी यानी रूल ऑफ फ्यू था। इनकी जो सोशल डिवीजन या क्लासेस थी ये देखिए मैप में आपको शो हो रहा होगा स्पार्टा यहाँ पर। इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। जो स्पार्टन थे ये बेसिकली एक मिलिट्री एम्पायर या मिलिट्री सिटी स्टेट थी जो कि ज्यादातर मिलिट्री बैकग्राउंड के होते थे। इनमें सबसे ऊपर वाला जो सोशल ग्रुप था या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में सबसे ऊपर थे उनको इफोर्स कहा जाता था। ये काउंसिल ऑफ 5 रूलर्स होती थी क्योंकि वहां पर ओलिगार्की थी तो यही 5 डिसीजन लेते थे। उसके बाद स्पार्टियाट्स थे, ये फुल टाइम सोल्जर होते थे। नॉर्मली 7 साल के बच्चे को गोगोस में भेज दिया जाता था जहां वो 18 साल की उम्र तक मिलिट्री ट्रेनिंग करता था। उसके बाद 30 साल की उम्र तक फिर वो फर्दर मिलिट्री एक्सपीडिशन के लिए जाया करता था। तो स्पार्टियाज ही मेन उनकी सिटीजन क्लास थी और इनको ही सोल्जर सिटीजन्स कहा जाता था जो फुल टाइम सिटीजन्स थे स्पार्टा। ये बड़े इंपॉर्टेंट समझे जाते थे और इनमें इक्वली जो स्पार्टा में प्रॉपर्टी थी वो भी इक्वली इन पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती। तो तीसरी क्लास थी वहां पर जिन्हें क्राफ्टमैन, मर्चेंट्स और फ्री नॉन सिटीजन कहा जाता था, प्रोके। प्रोके वो क्लास थी जो कि वहां पर रूटीन की एक्टिविटीज करती थी। और आखिरी क्लास जो कि वहां पर काफी तादाद में थी इनको हैलेट्स कहा जाता था, यानी ये स्टेट ऑन स्लेव्स होते थे। तो इट मींस दैट कि जिस तरह मैसेडोनिया में स्लेवरी थी लेकिन बहुत कम थी, स्पार्टा में भी स्लेवरी थी लेकिन स्पार्टा में जो स्लेवरी थी बहुत ज्यादा अमाउंट और तादाद में। और चीज जो हमें यहाँ पर याद रखनी है कि जो मैसेडोनियन एम्पायर थी वहां पर जो क्लासेस की डिवीजन थी वो बड़ी ज्यादा क्लियर थी और जो सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स था या सिस्टम ऑफ गवर्नेंस या अथॉरिटी था वो मोनार्क के पास था। रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को सिटीजन्स का ओहदा भी दिया जाता था और वो वॉरियर सिटीजन, सोल्जर सिटीजन भी कंसिडर करते थे। और रिमेनिंग जो पोर्शन था वो मर्चेंट्स भी थे, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी करते थे और जिसको आप समझ लें कि वो रिक्वायरमेंट्स जो स्टेट की होती है उनको पूरा करते थे और बहुत कम स्लेव थे। एज कंपेयर टू मैसेडोनिया, स्पार्टा में स्लेव्स की बहुत ज्यादा तादाद हुआ करती थी और ये स्टेट ऑन भी हुआ करते थे और फैमिलीज ओन भी हुआ करते थे। कहा यह जाता है कि जब स्पार्टन फुली प्रिपेयर्ड हो चुके होते थे, स्पार्टन सोल्जर बन जाते थे एट द एज ऑफ 30 हुआ करते थे, तो फिर उनको सबसे ज्यादा ताकतवर हेलेट्स की तरफ भेजा जाता था और जिन हेलेट्स को कत्ल करना उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग की एक सर्टिफिकेशन थी कि जब वो किसी हेलेट को कत्ल कर देते थे तो ये माना जाता था कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में काफी सक्सेस हासिल की। एक और चीज यहाँ पर याद रखी जाए कि जो स्पार्टन थे इनकी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन थी और ये वॉरियर टाइप सोसाइटी थी जिसमें 2 कैटेगरीज में एग्जीक्यूशन की जाती थी। नंबर 1 कैटेगरी, बच्चे की बर्थ के फौरन बाद अगर देखा जाए कि उसमें बहुत सी ऐसी क्वालिटीज नहीं है जो कि एक सेहतमंद बच्चे में होनी चाहिए तो उसको
फैंटिसाइड के थ्रू, यानी बचपन में ही कत्ल कर दिया जाता था, एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। और अगर ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग के बाद कोई स्पार्टन किसी वजह से फिजिकली अनेबल है फुली परफॉर्म करने के लिए, उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे एथेंस यानी एट्रिका का मेन सिटी स्टेट, जहां पर डेमोक्रेसी, इसकी जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या सोशल ग्रुप्स को देखा जाए तो सबसे ऊपर दर्जा सिटीजन यानी फुल सिटीजन्स का था। ये बेसिकली वही लोग हुआ करते थे जो मेल हो और सिटीजनशिप हो और वहां के नेटिव बाय बर्थ एथेनियन ही हो। ये गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते थे, गवर्नमेंट पोजीशन को सिलेक्ट करते थे, इक्लीसिया में जाके अर्ली मॉर्निंग डिफरेंट डिस्कशंस और डिफरेंट काइंड की जो इश्यूज थे उसको रिजॉल्व करने के लिए पार्टिसिपेशन किया करते थे, वोटिंग दिया करते थे, अपनी राय का इजहार किया करते थे। और एक और चीज यहाँ पर याद रखी जाए कि जितने भी एथेंस के ये जो सिटीजन्स थे, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर और एजुकेशन तक ही बाउंड रहा करते थे, और इनका कोई काम और कोई एक्टिविटी नहीं हुआ करती। इनकी जिम्मेदारी ये हुआ करती थी कि ये अपनी स्टेट से रिलेटेड डिफरेंट लेजिस्लेशन करें, स्टेट्स के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को डिस्कस करें, रीजन दें, जस्टिफिकेशन दें, और उस रीजन और जस्टिफिकेशन के रिजल्ट में डिफरेंट काइंड्स की रेजोल्यूशन लाएं जो कि नेटिव सिटीजन्स और स्पेशली एथेंस के रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। और यही वो एक वाहिद रीजन थी जिसकी वजह से इनके पास बहुत ज्यादा टाइम होता था, क्योंकि ये ना ट्रेड करते थे, ना बिजनेस करते थे, ना कोई और ऐसी एक्टिविटीज करते थे। और फिर इनके हाउस होल्ड की एक्टिविटीज में भी ज्यादातर जो कंट्रीब्यूशन थी वो फीमेल की हुआ करती थी। तो दो चीजें हमें यहाँ से समझ में आती हैं कि एथेंस से फिलॉसफी का इमर्ज करना, एथेंस से पॉलिटिकल स्कूल या पॉलिटिकल जो फिलोसोफर्स का इमर्ज करना, उसकी रीजन ये भी है कि एथेंस में मौजूद जो सिटीजन्स, मेल सिटीजन्स हुआ करते थे, उनके पास बहुत ज्यादा लग्जरी थी, टाइम की बहुत ज्यादा लग्जरी थी, एजुकेशन को प्रैक्टिकली यूज करने की, उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने की। और उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जो एथेंस के मेल सिटीजन्स हुआ करते थे, सारी की सारी एथेंस की प्रॉपर्टी भी इनके नाम हुआ करती। और जो लोअर कैटेगरी के काम थे, ट्रेड थी, एग्रीकल्चर था, कंस्ट्रक्शन था, ये तमाम की तमाम जिम्मेदारियां या मैटिक्स की जो सेकंड क्लास कैटेगरी है, या फिर उसके बाद स्लेव्स की हुआ करती। इसके बाद जो सेकंड ग्रुप या सेकंड कैटेगरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज द कैटेगरी ऑफ मैटिक्स। ये मैटिक्स रिच भी हुआ करते थे, पुअर भी हुआ करते थे। ये बेसिकली नॉन रेजिडेंट ऑफ एथेंस थे। ये थे तो ग्रीक, माइट भी ये स्पार्टा से ताल्लुक रखते हो, ये मैसेडोनिया से ताल्लुक रखते हो, या किसी और स्टेट से ताल्लुक रखते हो, लेकिन ये यहाँ पर बिजनेस करने की गर्ज से आते थे, इस कल्चर में एम्बेड हो चुके थे, यहाँ रहा करते थे, यहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज किया करते थे, लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करे, इनको नॉन सिटीजन कहा जाता था। और लास्ट में आएंगे स्लेव्स, जिनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है एथेंस में। एक वो कैटेगरी है स्लेव्स की जिनको बड़ा इंपॉर्टेंट स्लेव समझा जाता था। ये वो स्लेव्स होते थे जो एथेंस में आर्किटेक्ट की एक्टिविटीज किया करते थे, जो एथेंस के सिटीजन क्लास है, जो मेल डोमिनेटेड क्लास है, जो मेल्स हैं, उनके साथ रहा करते थे, तो इनको तो वेल ट्रीट किया जाता था। ये बड़े एसेंशियल समझे जाते थे, क्योंकि ये सिटीजन्स के हिस्से का काम भी करते थे और उनका बोझ भी कम करते थे। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो दूसरी कैटेगरी ऑफ स्लेव्स जो है उनको बड़ा पुअरली डील किया जाता था, इवन कि इनको जंजीरों में जकड़ा जाता था, इनको स्लेव्स की तरह ही ट्रीट किया जाता था, और इनके साथ बड़ा अनह्यूमन बिहेव भी किया जाता था। यहां पर हमने देखा मैसेडोनिया की मोनार्की, एथेंस की डेमोक्रेसी और स्पार्टा की ओलिगार्की। एक और चीज जो हमें यहाँ से पता चलती है कि एथेंस के लोग लिबरल थे, डाइवर्स थे, टॉलरेंट थे, रादर देन जो स्पार्टन थे, क्योंकि वहां ओलिगार्की थी, कंजर्वेटिव लोग होते थे, कन्फर्मिस्ट होते थे, क्लियर रूल होते थे जिनको उन्हें फॉलो करना पड़ता था। एथेनियन लोग बहुत ज्यादा वर्बोस होते थे, डायलॉग्स करते थे, डिस्कशन करते थे,
परसुएसिव होते थे, इंपॉर्टेंट होते थे, इस वजह से भी वहां रीजन जो है वो ज्यादा से ज्यादा इमर्ज की, फिलोसोफर ज्यादा से ज्यादा इमर्ज किए, बोलने की आजादी होती थी। और अगर हम देखा जाए रादर देन मैसेडोनिया में, तो मैसेडोनिया में कंपैरेटिवली ना ही आजादी थी बोलने की और ना ही कोई इतनी ज्यादा एजुकेशन या रीजन से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज की जाती थी। वहां पर एक सिंपल रूल था, बादशाहों का रूल था और वही उस सिस्टम को चलाते थे। स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हमने इन डेप्थ एनालिसिस किया, लर्न करने की कोशिश की, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमने देखे, उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह से डिफरेंट किस्म की जो सिविलाइजेशन है ये इमर्ज करती हैं, किस तरह से वो फिर डैमेज की जाती हैं, डिटीरियोरेट होती हैं, डिफरेंट हिस्सों में तकसीम होती हैं और उसके बाद अगली सिविलाइजेशन आती है। लेकिन ग्रीक्स के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा इस दैट की जो ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स बहुत ही ज्यादा अक्लमंद लोग भी थे। ग्रीक्स मिलिट्री अफेयर्स के बहुत ज्यादा माहिर थे। ग्रीक्स की जो सोसाइटी थी वो कंपोज सोसाइटी थी। गर्चा वहां पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन थी, लेकिन वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन उनके बेनिफिट में थी। वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन चाहे किसी भी सिटी स्टेट या मेजर सिटी स्टेट की सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आप देखें, वो उनकी सोसाइटी को बेनिफिट करती है। यही वो रीजन है जिसकी वजह से ग्रीक का जो कल्चर है, ग्रीक का जो आर्किटेक्ट है, ग्रीक की जो इंजीनियरिंग है, ग्रीक्स के जो पॉलिटिकल व्यूज हैं, ग्रीक्स के जो स्कॉलरली एक विजन है, ग्रीक की जो फिलॉसफी है, ग्रीक्स की जो मिलिट्री वॉरफेयर की टेक्निक्स हैं, उनको आज दिन तक बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है और वो बड़े इंपॉर्टेंट लर्निंग के एवेन्यूज को ओपन करती है। फ्रेंड्स, हमारे आगे जाने की जितनी भी लेक्चर सीरीज हैं उसमें हमारे लिए और ज्यादा आसानी का साबित होगी जब हम ग्रीक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि इन्हीं ग्रीक्स से सॉक्रेटिस इमर्ज करेंगे, इन्हीं ग्रीक्स के एथेंस से प्लेटो इमर्ज करेंगे और इन्हीं ग्रीक्स में एक मैटिक आएंगे जिनका नाम अरिस्टोटल है और जो के उस्ताद हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के। और अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ ही जब वो दोबारा वापस आएंगे ग्रीस में, तो फिर वो ग्रीस मैसेडोनियन ग्रीस होगा, वहां से एक नई फिलॉसफी का आगाज होगा। हम जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे जो कि सॉक्रेटिस के कॉन्सेप्ट हैं, जिसको हम विर्चू और नॉलेज के कॉन्सेप्ट से अंडरस्टैंड करते हैं, सोशल मोरालिटी के कॉन्सेप्ट से अंडरस्टैंड करते हैं, पॉलिटिकल मोरालिटी के कॉन्सेप्ट से अंडरस्टैंड करते हैं, एंटी डेमोक्रेटिक सिस्टम के कॉन्सेप्ट से अंडरस्टैंड करेंगे। फिर उनके शागिर्द, उनके डिसिपल प्लेटो के कॉन्सेप्ट सामने आएंगे, रिपब्लिक उनकी एक बुक, उनकी एक आइडियल रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट सामने आएगा, उसमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट सामने आएंगे, फिलोसोफर किंग के कॉन्सेप्ट, गार्डियंस के कॉन्सेप्ट सामने आएंगे। उसके साथ साथ जो सेकंड लेयर ऑफ सोसाइटी या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन प्लेटो करते हैं, जिसको हम स्पिरिट का कहते हैं या जिसको हम वॉरियर्स कहते हैं, उनको अंडरस्टैंड करेंगे। और लास्ट लेयर में जो उनकी एक आइडियल रिपब्लिक है प्लेटो की, जिसमें वो जिक्र करते हैं एपिटाइट का, यानी डिजायर का, यानी उन क्लास और उन लेवल के लोगों का जो आर्किटेक्ट हैं, जो कि ट्रेडर्स हैं, जो कि कम्युनिटी को सर्विस करते हैं और स्टेट की डिजायर को पूरा करते हैं। उसके बाद प्लेटो की ही दूसरी इंपॉर्टेंट तस्नीफ, दूसरी इंपॉर्टेंट किताब द लॉज को अंडरस्टैंड करेंगे, स्टेट्समैन को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर प्लेटो के शागिर्द अरिस्टोटल द पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। और अरिस्टोटल का जो एक डिफरेंट ओपिनियन है प्लेटो की रिपब्लिक के बारे में, और वो एक नई रिपब्लिक की बात करते हैं अपनी बुक पॉलिटिक्स में, जो रिपब्लिक जो प्लेटो की रिपब्लिक से डिफरेंट होगी, जिस रिपब्लिक में या जिस स्टेट सिस्टम में स्टेट की ड्यूटीज डिफरेंट होंगी, जिसमें जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है जो कि प्लेटो ने की थी उससे डिसएग्री करेंगे अरिस्टोटल को, और अरिस्टोटल इसके बाद इमर्ज करेंगे एज ए फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो होप आगे आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आप सबके लिए। आखिर में हमारे कुछ एड्रेसेस हैं, कुछ डायरेक्ट हमसे रब्ता करने के लिंक्स हमने शेयर किए हैं। होप आपका जो आज का लेक्चर है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव और बेनिफिशियल होगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। You can subscribe us on YouTube
www.executive coaching center. You can join our Facebook page, that is www.facebook.com/ecc.farhan, and you can contact us on our WhatsApp 0092 3328 697 Wishing you best of luck. Thank you very much. Allah Hafiz.